Hello students, how are you? Welcome back in my class. Today it is my second lecture of the chapter Motion in a Straight Line. Students, in my first lecture of the motion in a straight line, you got information about mechanics, kinematics, state of rest and motion, motion in 1 and 2 and 3 dimension, and with this you also got the information regarding distance and displacement. Students, today I am going to start the topic speed. Students, in this chapter of motion in a straight line, you know that change in position of the object represents the motion. Yes? अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो ये मोशन के बारे में बात हो रही है. How the position will change? Object will move. और अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगी तो उसकी कुछ न कुछ स्पीड होगी. ठीक है ना? इसकी कुछ न कुछ स्पीड होगी. तो अब ये नया टर्म डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, डिस्टेंस द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी के साथ हम नए टर्म पे आ रहे हैं, एंड दैट इज द स्पीड. एंड व्हाट इज इट? Students, if any object moves, it covers some distance in some time. So you know, the distance traveled by the object in unit time will be what? Divide that distance by that time, you will get the distance traveled by the object in unit time. And this term, distance traveled in unit time, will be speed. So now, definition of the speed is the rate of change of position of an object with time in any direction, because of speed is scalar quantity. In any direction is speed. और दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज स्पीड. क्लियर? तो दिस वाज द जनरल डेफिनेशन ऑफ द स्पीड, बट देयर आर फ्यू केसेस. फॉर एग्जाम्पल, यूनिफॉर्म स्पीड means when object covers equal distances in equal time intervals, then its speed will be uniform speed. यानी हर एक मिनट में, हर आने वाले अगले एक मिनट में ऑब्जेक्ट 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है. इट मीन्स ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड. क्लियर? द नेक्स्ट टर्म इज वेरिएबल स्पीड. जस्ट अपोजिट ऑफ द यूनिफॉर्म स्पीड. उसमें क्या था? यूनिफॉर्म में इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, और यहां पे क्या हो जाएगा? अनइक्वल डिस्टेंसेस. और यहां पे दिया भी गया है कि इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल, यानी हर एक मिनट के बाद कभी वो 100 मीटर कवर कर रहा है, कभी 1 किलोमीटर कवर कर रहा है, कभी 500 मीटर कवर कर रहा है, तो यानी अनइक्वल डिस्टेंसेस. एंड इन दिस कंडीशन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी वेरिएबल स्पीड. यस, ठीक है, जो कि हमारा ये डिफाइन किया गया है. राइट? अब जब हम बात करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो उसकी स्पीड तो कांस्टेंट होगी, उसमें हमें कोई बात ही नहीं करनी है. लेकिन अगर ऑब्जेक्ट हमारा वेरिएबल स्पीड से चल रहा है, यानी अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम,
then what will be its speed? इस कंडीशन में हम जो स्पीड कंसीडर करने वाले हैं, दैट स्पीड विल बी एवरेज स्पीड. यस, और यहां पे डिफाइन किया गया है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, दिस केस, then average speed is the total distance traveled by the object divided by the total time taken to cover that distance. Once again, the total distance traveled by the object divided by the total time taken to cover that distance is average speed. Formula: average speed is equal to total distance traveled upon total time taken. Yes, students, if object is moving from one point to other point, the distance, for example, is 5 kilometer, and time taken for covering this distance is 10 minutes, then what will be its speed? First of all, we'll convert the unit in the same system and then divide the distance by the time. We will get the speed. That will be the average speed. लेकिन अगर इस पूरे मोशन के ड्यूरेशन में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ऑब्जेक्ट क्रॉस कर रहा है, उस समय इसकी स्पीड क्या होगी? या मान लीजिए मोशन आपका 430 से 450 के बीच का है और आपसे कहा जा रहा है व्हाट वाज द स्पीड एट 4.35.20, यानी पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड क्या थी. इस तरीके की स्पीड को हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड. स्टूडेंट्स, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट at any particular instant or at particular point of its path is instantaneous speed of the object. Yes, मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डेल्टा एक्स कवर कर रहा है स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी में, तो एवरेज स्पीड क्या होगी? जो कि मैंने ऊपर बोला था एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एंड देयरफॉर एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये है. एवरेज के लिए हम टर्म के ऊपर एक लाइन खींचते हैं, इसको बार बोलते हैं एवरेज. तो वी बार, दैट इज एवरेज स्पीड, इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, यानी टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम इंटरवल. यस, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने लिखा है एवरेज स्पीड वी बार इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी. दिस इज एवरेज स्पीड. टाइम कितना था? डेल्टा टी, दैट वाज द फाइनाइट टाइम. 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट, वॉट एवर इट मे बी. But if this object during its motion, if crosses a point, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को क्रॉस कर रहा है, जैसे कोई रास्ते में एक पेड़ लगा हुआ है मैंगो ट्री, और वो मैंगो ट्री को क्रॉस कर रहा है उस समय, या उस समय आपका एक पर्टिकुलर टाइम था 6:02 यानी टाइम इंटरवल पेड़ को क्रॉस करने का क्या होगा? लेस देन अ सेकेंड, 1 सेकेंड से भी कम. पूरी जर्नी आपकी 5 किलोमीटर की 20 मिनट की थी. 5 किलोमीटर डिस्टेंस आप 20 मिनट में कवर कर रहे थे, लेकिन द टाइम व्हेन यू क्रॉस द ट्री विल बी लेस देन इवन 1 सेकेंड. तो इसका मतलब ये डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल. हम बोलते हैं इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, इट इज नॉट 0. ये 0 नहीं है, बट इट अप्रोचेस टू 0. इन दिस कंडीशन
द मोशन, योर स्पीड विल बी इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो अभी हम इस एवरेज स्पीड को डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिख रहे हैं, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को क्या लिखेंगे? v इज इक्वल टू, टाइम की लिमिट तय हो गई ना आपकी, कितनी? अ वेरी स्मॉल टाइम, यानी डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो हमने लिखा v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। लेकिन इस टर्म को और मॉडिफाई किया गया और इसको आप लिख सकते हैं dx अपॉन dt, दैट इज वेरी स्मॉल। dx, डेल्टा एक्स द पर्टिकुलर, बट dx इज वेरी स्मॉल, क्योंकि डिस्टेंस भी बहुत छोटी हो गई और टाइम इंटरवल भी बहुत छोटा हो गया, टेंड्स टू जीरो, और डिस्टेंस भी बहुत स्मॉल हो गई। dx विल बी ऑल्सो वेरी स्मॉल, डेल्टा एक्स विल बी वेरी स्मॉल, तब हमने इसको dx अपॉन dt लिखा। एंड देयरफॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं? क्लियर, वेरी गुड। अच्छा, एक टर्म आपने सुना होगा स्पीडोमीटर। व्हाट इज इट? बाइक में लगा है, कार में लगा हुआ है, सारे व्हीकल्स में लगा हुआ है स्पीडोमीटर, विच मेजर्स द स्पीड। और कौन सी स्पीड मेजर कर रहा है? इट मेजर्स इंस्टेंटेनियस स्पीड एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे। कभी हम जा रहे हैं तो 40 किलोमीटर की स्पीड है, तो उस इंस्टेंट की स्पीड हमारी 40 किलोमीटर है, कभी 35 होगी, कभी 60 होगी। दैट स्पीडोमीटर मेजर्स इंस्टेंटेनियस स्पीड, राइट स्टूडेंट्स? लाइक स्पीड, देयर इज अनदर टर्म दैट इज द वेलोसिटी, यू नो वेरी वेल। एंड द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, I think you will be knowing that one is the scalar and velocity is the vector. तो इसका मतलब क्या हुआ? Same definition. The rate of change of position of the object with time in given direction. पीछे क्या था हमारा? पिछले केस में क्या था? स्पीड के बारे में हमने कहा था in any direction. In any direction. Because of direction का कोई मतलब नहीं है। लेकिन वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? देयरफॉर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम इन गिवन पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्लियर? और दूसरी तरफ हम डिफाइन कर सकते हैं द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम. It is also velocity, and we can write this velocity is equal to displacement upon time. Clear? A little difference, but great difference. At the place of distance, we are writing here displacement. This is small difference, but the great difference in the sense displacement is the vector quantity and distance was the scalar quantity. Yes? ठीक उसी तरीके से जैसे हमने स्पीड में यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड डिफाइन किया था, नाउ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. इट्स वेरी क्लियर. इफ ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, देन इट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी. वहां पे हम लोगों ने डिस्टेंस के बारे में बात किया था, इक्वल डिस्टेंसेस, यहां पर इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स, राइट, इन equal time intervals, then this is uniform velocity. Clear? And if speed of the object changes, हम लोग अब variable velocity की बात कर रहे हैं, तो variable speed velocity में क्या हो गया? Equal displacement की जगह unequal displacement. In the terms of the magnitude, unequal displacement मतलब या तो डायरेक्शन चेंज हो रहा हो या मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, दोनों बातें हो गई. डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इट विल हैव डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड. ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि इफ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस और द डायरेक्शन चेंजेस, या दोनों ही चेंज हो रहे हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड यानी स्पीड, इन दिस कंडीशन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी वेरिएबल वेलोसिटी. ठीक है, जैसे सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है,
तो क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है? नहीं, वेलोसिटी विल बी वेरिएबल. ऑन अ सर्कुलर पाथ इट्स वेलोसिटी विल नॉट बी कांस्टेंट, जबकि स्पीड कांस्टेंट है. क्यों? क्योंकि हर समय उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है. क्लियर? एंड एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? कहते हैं इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी देन एवरेज वेलोसिटी विल बी एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इंटरवल. कोई डाउट किसी को? नहीं? ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, राइट? ठीक पहले ही स्पीड की तरीके से हम लोग अब डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. लाइक इंस्टेंटेनियस स्पीड, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर पॉइंट और पर्टिकुलर इंस्टेंट will be its instantaneous velocity. जैसा कि लिखा हुआ है, velocity of the object at particular instant or particular point of its path is instantaneous velocity. कैसे लिखेंगे? पिछला आपने देखा था ना, पिछले केस में इंस्टेंटेनियस स्पीड में आपने देखा था ये v is equal to limit delta d tends to 0 delta x upon delta t, यानी v instantaneous speed is equal to dx by dt. वही तो यहां भी लिखा है हमने. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, यानी v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी. सेम, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई दे रहा है. यहां पर क्या था? हेयर इट वॉज v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, और यहां पर हमने लिखा है वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर डी एक्स अपॉन डी टी. वेक्टर क्यों किया? क्योंकि वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है और dx हमारा डिस्प्लेसमेंट है, और पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात हो रही है, इसीलिए इसको dx डेल्टा x की जगह dx कर दिया. या डेल्टा x अपॉन डेल्टा t लिखते हैं तो लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 लिखते हैं. ठीक है? तो नाउ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू dx अपॉन dt. क्लियर स्टूडेंट्स? किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, राइट? अब आपको मालूम है अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ना तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है. यस? तो हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी और कोई भी चेंजेस नहीं होंगे. लेकिन अगर हमारा स्पीड या वेलोसिटी कोई भी दे लें, वो चेंज हो रहा है. स्पीड चेंज होने का मतलब मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी चेंज होने का मतलब या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, या तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, या दोनों चेंज हो रहा है. यस? और आपको मालूम है व्हाट इज द एक्सेलरेशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज एक्सेलरेशन. जहां भी आपकी स्पीड या वेलोसिटी चेंज हो रही है, वहां पर एक्सेलरेशन होगा. इसको दिमाग में रख लीजिए. अब वो वेलोसिटी या स्पीड किसी भी कारण से हो रही हो, डजंट मैटर, बट देयर विल बी एक्सेलरेशन. तो यहां डिफाइन किया गया है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय स्मॉल a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. क्लियर? फिर वही बात करते हैं. फॉर वेरिएबल वेलोसिटी the ratio of the total change in velocity of the object to total time taken will be average acceleration. Variable velocity के लिए होगा. अगर velocity constant है तो acceleration होना ही नहीं है. अगर velocity uniform है तो acceleration नहीं होगा. But if there is variation in the velocity, that is for variable velocity, the ratio of total change in velocity to the total time taken will be average acceleration, and a average is equal to delta v upon delta t. कोई डाउट नहीं? वेरी गुड. अब हम लोग फिर उसी स्पीड या वेलोसिटी के तरीके से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करेंगे. तो एवरेज एक्सेलरेशन टाइम इंटरवल डेल्टा टी के लिए होता है, और इंस्टेंटेनियस यानी पर्टिकुलर इंस्टेंट या
पर्टिकुलर पॉइंट पर उसका एक्सेलरेशन क्या था, तो फॉर दैट वी टेक डेल्टा टेंड्स टू जीरो, यानी एट एनी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन a is equal to limit delta t tends to zero delta v upon delta d, that is a is equal to dv upon dt. Yes, your acceleration is what? A is equal to dv upon dt, यानी rate of change of velocity is acceleration. Yes, यहीं तक एक्सेलरेशन सफिशिएंट है, लेकिन हम कुछ स्टेप्स आपको और बता रहे हैं. क्या? What is the v? v is dx upon dt. v is dx upon dt. तो v की जगह रख दें, एक इज इक्वल टू d अपॉन dt एंड फॉर v dx अपॉन dt, दैट इज a इज इक्वल टू d2x अपॉन dt स्क्वायर. क्लियर? a इज इक्वल टू d2x अपॉन dt स्क्वायर. क्लियर? अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम यूनिट की बात करने जा रहे हैं. यूनिट, डिस्टेंस की यूनिट क्या है आपको मालूम है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर एक्सेट्रा. स्पीड या वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर मिनट एक्सेट्रा. और ठीक उसी तरीके से एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. राइट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर या किलोमीटर पर आवर स्क्वायर. लेकिन जनरली एसआई सिस्टम में हम लोग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही कंसीडर करते हैं. ठीक है. डायमेंशन एनालिसिस आपने पढ़ी होगी. तो डायमेंशन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का डायमेंशन कैपिटल एल. स्पीड या वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, एल टी माइनस वन. ठीक है. और एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन विल बी एल टी माइनस टू. क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड ऑब्लिक वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एक्सप्लेन करने के बाद, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू वन मैथमेटिकल टूल. और मैथमेटिकल टूल है तो मैथमेटिक्स के टॉपिक से होगा, एंड दैट इज योर डिफरेंशियल कैलकुलस. और फॉर्मूला क्या है, d by dx x पावर n इज इक्वल टू n x पावर n माइनस वन. ये कैलकुलस का फॉर्मूला है. x पावर n x का फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा x पावर n का, तो d by dx x पावर n इज इक्वल टू n x पावर n माइनस वन. अब फंक्शन x का है, तो यहां x की जगह कोई कांस्टेंट ले लें, d by dx c इज द कांस्टेंट, यानी किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो दैट विल बी जीरो. ठीक है. फंक्शन x का है तो x पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n x पावर n माइनस वन. लेकिन अगर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना है तो d by dx फॉर द कांस्टेंट विल बी जीरो. यस. और दो चीजें मैथमेटिकल टूल्स में ही, कि इफ x इज डिस्प्लेसमेंट देन वेलोसिटी विल बी व्हाट, v इज इक्वल टू dx अपॉन dt. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपने पढ़ी हुई है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज इक्वल टू dx अपॉन dt. तो अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है तो आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो dx अपॉन dt, यानी डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में एंड यू विल गेट द वेलोसिटी. और ऐसे ही अगर आपको एक्सेलरेशन a निकालना है, a, तो a इज इक्वल टू dv बाई dt, यानी वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, यू विल गेट द एक्सेलरेशन. क्लियर? मतलब डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा. और ये फार्मूला आपको मालूम है, v इज इक्वल टू dx अपॉन dt एंड a इज इक्वल टू dv अपॉन dt. अब मैं आपको इस पे एक क्वेश्चन करा रहा हूं, इसके बाद आप प्रैक्टिस करिएगा. स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज द डिस्प्लेसमेंट x of a particle varies with time t
varies with time t as displacement x is equal to 4t square minus 5t plus 25. ये डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ वेरी हो रहा है इस इक्वेशन के फॉर्म में. फाइंड पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू 0. यहां पे 0 पूछा गया है. t कुछ भी हो सकता है. t इज इक्वल टू 1, 2, 3 ऑनवर्ड्स कुछ भी हो सकता है. स्टूडेंट्स कैसे करेंगे? अच्छा क्वेश्चन है ये. पोजीशन दी हुई है x इज इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 25. ये आपकी पोजीशन हो गई. इक्वेशन हो गया. अभी t इज इक्वल टू 0 पे पोजीशन नहीं आई है. हम पहले इन्होंने पूछा क्या है, पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन तीनों एक साथ फाइंड करके तब बताते हैं. तो डिस्प्लेसमेंट यू गॉट राइट. व्हाट विल बी वेलोसिटी? यू नो v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, यानी v इज इक्वल टू dx अपॉन dt यानी d बाई dt एंड x की जगह 4t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 25 रख दिया. ठीक है. इसका मतलब अब ये t के फंक्शन है ना ये तीनों, तो हम इन तीनों को डिफरेंशिएट करेंगे. तो पहला टर्म अलग अलग न लिखने की जगह मैंने क्या किया, एक साथ कर दिया है. तो 4t स्क्वायर, 4 तो कांस्टेंट है ऐसे ही रखा हुआ है. अब t स्क्वायर यानी t पावर n और x पावर n का क्या होता है, n x पावर n माइनस 1. तो t पावर 2 का क्या होगा, 2t पावर 2 माइनस 1. n की जगह 2 हो गया ना, तो 2t पावर 2 माइनस 1. माइनस का साइन लगाया 5. अब t का मतलब क्या हुआ, t का मतलब हुआ t पावर 1. कुछ भी पावर नहीं है, इसका मतलब t पावर 1. राइट. तो अब क्या करेंगे, 5 कांस्टेंट है वैसे रख दिया, इनटू n हो गया 1, तो 1 इंटू टी पावर 1 माइनस 1. राइट. और 25 क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0. तो 25 का हो गया 0. अब मैं इसको अरेंज करता हूं, 4 2 जा 8, टी पावर 2 माइनस 1 यानी t माइनस 5, यानी वेलोसिटी हो गया 8t माइनस 5. क्लियर. अब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं. तो एक्सेलरेशन क्या है, dv बाई dt. a इज इक्वल टू dv बाई dt. तो a इज इक्वल टू dv बाई dt और v की जगह 8t माइनस 5 रख दिया, d अपॉन dt 8t माइनस 5. अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो 8 की जगह वैसे ही रख दिया, t का मतलब t पावर 1, तो यानी 8 इंटू 1 इंटू टी पावर 1 माइनस 1. n क्या हो गया, 1. तो n x पावर n माइनस 1. फंक्शन x था, यहां फंक्शन क्या है, टाइम t. तो t पावर 1 यानी 8 इंटू 1 इंटू टी पावर 1 माइनस 1 माइनस 5 कांस्टेंट है 0. तो ये हो गया 8 1 जा 8, टी पावर 1 माइनस 1 0, और टी पावर 0 का मतलब 1 यानी 8, यानी एक्सेलरेशन हो गया 8. यहां तक समझ में आ गया. ठीक है. ये तो हमारे रिलेशन निकले डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के. अब क्वेश्चन में कहा गया है एट टाइम t इज इक्वल टू 0. तो अभी क्या करेंगे हम लोग, t इज इक्वल टू 0 पे, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या होगा. तो इन इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3 वॉट एवर दे आर पुटिंग t इज इक्वल टू 0. तो पहले इक्वेशन में t 0 रख रहे हैं. 4 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 प्लस 25, ये 0 हो जाएगा, दैट इज 25 मीटर. यानी t इज इक्वल टू 0 मीटर, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट हमारा 25 मीटर था. क्लियर. वेलोसिटी 8t माइनस 5, तो 8 t की जगह 0 माइनस 5 यानी माइनस 5 मीटर पर सेकेंड. यानी उस समय हमारी वेलोसिटी क्या थी, माइनस 5 मीटर पर सेकेंड. क्लियर. और ऐसे ही अगर हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो a इज इक्वल टू 8, t इज इक्वल टू 0 पुट करना है. इस टर्म में कहीं t है नहीं, इसका मतलब यही हमारा एक्सेलरेशन हो गया. एंड देयरफॉर a इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर. स्टूडेंट्स ऐसे ही कोई भी डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन बनाइएगा पावर 3 पावर 4 के साथ, ये 4 लीजिएगा, इसको 3 लीजिएगा, इसको 2 ऑनवर्ड्स जो भी लीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन बनाइएगा और पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के इक्वेशंस फाइंड करिएगा. और पर्टिकुलर टाइम
0 की जगह 1 2 3, जैसे इसी क्वेश्चन में हमारा टाइम 2 होता, t इज इक्वल टू 2, तो हम क्या करते हैं, यहां पर t की जगह 2 रखते, तो 8 2 16 होता ना, 8 2 16 माइनस 5 दैट इज 11 हो जाता। ठीक है ना। तो ये हमारा टाइम अलग अलग बदलने से, टाइम पर्टिकुलर इंस्टेंट बदलने से स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में वेरिएशन होता रहता। ठीक है। अब जैसे बाय द वे इसी क्वेश्चन में कहते t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो पहले हम 0 रख के निकालते तो हमारा आया 25, फिर हम 4 रखते तो कुछ और आता, तो x2 माइनस x1 करते तो डेल्टा x मिल जाता, नहीं मिलता भाई। पहले आपने 0 रखा तो ये आपका आया 25, फिर आप x इज इक्वल टू 4 रखते तो कुछ और वैल्यू आती, मान लीजिए कुछ आती, तो पहला वाला x1 हो जाता, और उस इंस्टेंट t इज इक्वल टू 4 पे क्या होता, x2, और x2 माइनस x1 क्या होता, डेल्टा x, और टाइम डिफरेंस डेल्टा t क्या होता, 4 माइनस 0, तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t कहते हैं। तो हम आप एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर सकते थे। ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि इस इंस्टेंट के बीच की एवरेज वेलोसिटी निकालिए, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते, डेल्टा v एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। तो डेल्टा x का मतलब x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, तो t1 0 हो गया, t2 4 हो गया, x1 इसमें 0 रख करके निकालेंगे और x2 इसमें 4 रख के निकाल लेंगे, और फॉर्मूले में पुट करके हम एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके की क्वेश्चंस स्टूडेंट्स आप ट्राई करिएगा। दीज आर वेरी गुड क्वेश्चंस। हाँ, ये मैथमेटिकल टूल इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिकल टूल्स तो बहुत से हैं, लेकिन हमारा इस पर्टिकुलर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर में जो टूल अभी तक की टॉपिक्स में यूज हो रहा है वो यही है, x पावर n इज इक्वल टू n x पावर n माइनस 1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसको कैसे यूज करेंगे मैंने बता दिया है। कांस्टेंट के लिए डिफरेंशिएशन 0 होता है, और डिस्प्लेसमेंट x है तो वेलोसिटी dx अपॉन dt होगी, एक्सीलरेशन dv बाई dt होगा। और मुझे लगता है कि यहां तक आपको समझ में आ गया है, तो आप इस पे बेस्ड दो चार न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करिएगा। ये हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन का सेकेंड लेक्चर कंप्लीट। थैंक यू।